بولے جی چلے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. آج ہم لاہور میں سید نایاب حیدر صاحب کی چھت پر یہاں پر موجود ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ سید نایاب حیدر صاحب نے گزشتہ جو ڈیٹ تھا 2023 تو 2024 کا، تو اس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اسی کی زبانی سنیں گے کہ انہوں نے کیا کیا محنت کی، کیسے یہ آپ نے ہدف حاصل کیا. اور بہت بڑا نام ہے کبوتر پروری کا، آپ سب جانتے ہیں. اور انہی کا یہ سیٹ اپ ہے جہاں پروازی کبوتر ہیں. اور ایک خاص بتاتا چلوں بھائی، حیدر علی بیٹا ادھر آؤ حیدر. جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، یہ پلیئر نیا ہے ماشاءاللہ. بڑے نایاب حیدر کا پوتا ہے حیدر علی، اور ان کی چھت ان کے نام پر اڑی ہے. اور اپنے بچوں کو ٹرینڈ دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ شوق ہمارا ہے، ہماری فیملی کا شوق ہے، اپنی فیملی کو منتقل کریں گے. تو اسی وجہ سے اپنے بچوں کو یہ تھوڑا حوصلہ دے رہے کہ ہر جگہ پہ ایسے نہیں ہوتا. یہ ہمارا شوق ہمیں عزیز ہے، اسی حوالے سے جو ہے ہم اس کو اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں. کیا جی ایسے ہی ہے؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی. ہاں جی ایسے ہی ہے. جی آپ نہا کے کے دھو کے فریش ہو گئے ہاں جی. کل کے 16 گھنٹے کے سفر کے بعد. دیکھیں مشکلات کے پیچھے آسانیاں ہوتی ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے بڑا ہی. کل کا مشکل سفر گزارا ہم نے. تو چلے آج پھر جیت میں بھی ایسی ہی مشکلات آتی ہیں. ایسے ہی ہے. یہ وہی سیٹ اپ ہے جی لاہور کا، جو 2024 کا بادشاہ بنا اور ان پہ سعید فیملی نے راج کیا. ایسے ہی جی سر. ایسا ہی کیا. یہ کبوتر اڑایا ہوں میں ماشاء 39 کبوتر اوپر ہیں ابھی. بڑے باس بھی ہیں. اور السلام علیکم. ہاں کیسے جی؟ تشریف رکھیے. کیا جی میرے ساتھ آ جائیں آپ. میں آ رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی آ رہا ہوں. آپ ایسے ادھر آ جائے چیک کر لیں. دوستو میرے ایسے سمجھو کہ میں اپنی لائف کی بات کر رہا ہوں. میرے استاد محترم تھے استاد رحیم بخش مغلی صاحب. فرسٹ ٹائم جب مجھے یہاں پر بٹھایا، ان کے گھر پہ لائے تھے، موبائل تو اس چیز کو کوئی 10-12 سال ہو گئے. پھر اس کے بعد میں نے کوئی 1 سال بھی ناغہ نہیں کیا ہے کہ ہم اس گھر پہ نہ آئے ہیں. یہ ہمارا اپنا گھر ہے، اپنی فیملی ہے، اسی حوالے سے ہم آتے رہتے ہیں. تو اس دفعہ ہم نے لاہور میں ہم نے کہ معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم. تو ماشاءاللہ سید نایاب حیدر صاحب نے تاجی ادھر نہ آ جائیں، وہ پیچھے دھوپ پڑتی ہے تو نظر نہیں آتا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے نہیں نہیں ادھر چلے. پیچھے پنجرے آئیں گے نا، پیچھے پنجرے آئیں گے. ادھر آ جاؤ بیٹے. ادھر چین لے آؤ اپنی. ادھر لاؤ. اسٹینڈ سیٹ کر کے نئے سرے سے اسٹارٹ کر لو. چیئر لے آ جاؤ جی میرے بیٹے. اپنا کام خود کرتے خود لے آتے ہو جی. آ جاؤ بیٹھے نا. اچھا چلو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اچھا جی چلو اپنا بنا لو بھی صحیح یہاں سے. جی دوستو تھوڑا روشنی کا مسئلہ تھا، اسی حوالے سے سیٹنگ ہو جیسے آپ کو بھی کوئی دقت نہ ہو اور کوئی ایسی پریشانی نہ ہو. دوستو موسم گرما کا شوق ہو یا موسم سرما کا، کبوتر اڑتے ہیں. کبوتر پروری کا ایک ذہن ہوتا ہے، مگر شوق اصل جو جیٹ کا ہے، جو ہمارے پاکستان میں اور ہمارے پاکستان کے لاہور میں اصل معنی میں جو چیمپئن ہوتا ہے
उसी को पाकिस्तान का चैंपियन माना जाता है। लाहौर एक मरकज है, लाहौर एक यूनिवर्सिटी है। लाहौर की इस तख्त लाहौर जिसको बोलते हैं, उस पर जो इसकी हुक्मरानी होती है, लाजमन उसी के पास हम आए हैं और उनसे सीखते भी हैं और उससे ज़माना सीख रहा है आजकल। तो हम भी इसी बात के बिना पर उस्ताद के पास पहुंचे। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो उस्ताद जी। पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमें मजबूर होना पड़ा कि आपके पास हम आए और आपसे आपको मुबारकबाद भी दें, आपसे कुछ सीखे भी। आपने ज़माने को सिखाया है। तो ये कैसे सफ़र हुआ जी आपका मौसम गर्मा में इतनी बड़ी प्रोग्रेस, जिसमें पाकिस्तान भर में धूम मची हुई है और आपके चर्चे चल रहे हैं माशाल्लाह। देखें जी ज़नफर भाई, मैं तो इस तमाम सीन पर अपने रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने इतना बड़ा करम किया, इतनी रहमत की उसने। और ये जो अनबिलीवेबल रिज़ल्ट है जिस पर सारा लाहौर क्या ऑलमोस्ट पाकिस्तान अंगुश्त बंदंदा था। कबूतर ऐसे भी उड़ सकते हैं। और फिर दूसरी बात कि जिस तरह कबूतर उड़ के बैठते थे, वो ऐसे फील होता था कि जैसे कबूतर को पिंजरे से निकाल के बाहर छोड़ दिया, ये उड़ के ही नहीं आए। इतने फ्रेश कबूतर बैठते थे। तो मैं तो सिर्फ इसको अल्लाह की रहमत के बाद अगर कोई ताबीर देता हूँ तो वो हार्ड वर्क है। मेरे छोटे भाई शादाब हैदर, मिट्ठू सलीम मिट्ठू मेरा शागिर्द है, अली अहमद मेरा पोता शागिर्द है। ये लोगों ने, मैं तो चूँकि इनके साथ बैठता था, फिर लेता था। मेरे पास 1 साल का मौका था, छुट्टी थी मेरे पास, तो मैंने वो साल छत पर ही गुजारा अपना। उस्ताद जी ये तो बात असल है कि कबूतर तो पहले भी आपके पास यही थे, यही प्राण चला आ रहा था। पहले इतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था? इस दफ़ा इतना ये सब बड़ा रिजल्ट कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, ये आपने बात सही की, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने तो पहले आपको बात की कि ये रिज़ल्ट अल्लाह की मेहरबानी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। अगर कोई इंसानी हाथ या दिमाग ये कर रहे होते तो शायद ये ना होता। ये मेरे रब का करम है। उसके बाद जो बात आपने की, कबूतर तो यही थे, नहीं कबूतर ये नहीं थे। कबूतर आपको याद होगा कि आज से कुछ 4 साल या इससे भी शायद कबल आपने मेरा इंटरव्यू किया था यहाँ। और उस इंटरव्यू के दौरान जो 4 साल कबल आपने मेरा यहाँ इंटरव्यू 4 साल प्लस जो इंटरव्यू मुझे याद है, उसमें आपने एक सवाल पूछा था मुझसे कि जी उस्ताद जी टेडी कबूतरों के बारे में कुछ बताएं, इसकी तारीख के बारे में बताएं जी जी, कि ये कबूतर कैसे बने। तो उसमें मैंने वैसे डिटेल भी बताई आपको, लेकिन जो कट शॉर्ट बात थी उसमें वो ये थी कि इनके बैक पर चौंसरे कबूतर हैं, इन पर्टिकुलर चूहे कबूतर। जी जी जी, ऐसे ही बात, यही बात बताई थी, यही बताई थी। जी जी। अब वो इसमें जो मेन बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उस वक़्त ये जब बात की तो वो क्लिप इतना वायरल हुआ, लोगों ने इसको बड़ा लाइक किया और उसके बाद लोगों ने जौंसरे कबूतर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। फिर दोबारा से अच्छा रिवाइवल हुआ। हालांकि मैंने बताया, अभी मैं आपको एक मादा दिखाऊंगा। जो मेरा बंदा ज़रा नीचे गया, वो आ जाता है तो वो टेडी मादा मैं आपको दिखाऊंगा, आप वो देखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। अच्छा। तो कबूतर मैंने भी उस वक्त इकट्ठे किए हुए थे और मैं एक ब्रीड की जयसूरिया तो अल्लाह ताला ने मेरा ट्रेडमार्क बना दिया था, बिल्कुल। और वो जो थे मेरे पास पेयर ही आया था जो आगे बढ़ गया। लेकिन ये जो अब मैं इसमें था कि आप अक्सर देखते हैं, क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ है आपका, जी जी, और इंटरनेट यूज़ करते हैं आप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं आप, जी जी, तो आपने उसमें देखा कि अक्सर आपको देखने में नज़र आता होगा ये फलां वाले कबूतर हैं, ये फलां वाले कबूतर हैं, दुनिया में ये गामे वाले कबूतर हैं, बिल्कुल ये माझे वाले कबूतर हैं, ये साझे वाले कबूतर हैं। ऐसे ही है। तो मुझे अक्सर ये सुनने के बाद हैरत ये होती थी कि अल्लाह के बंदे जो आप लोगों के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, लोगों जो मतलब पुराने दौर में जो वो आज से कुछ 100 साल पहले का दौर था, 70-80 साल 60 साल पहले का, तो उस दौर में
पिंडों में कहते थे ये मरासी है, चौधरी है ना मरासी रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो वो आजकल ये लफ्ज बन गया ब्रांड एम्बेसडर कि जी ये उनकी जाके पब्लिसिटी करेंगे और ये करेंगे, वो बात ये थी। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के बंदे, तुम दूसरों की जो ये बातें कर रहे हो, व्हाट इज योर क्रेडिट? आपने क्या किया है? आपने क्या किया? इस शौक में आपने भी कुछ किया है, तो उसको देखते, तो उस में अल्लाह ताला ने इस दफा मेरा हाथ पकड़ा। ऐसे ही है। ये पाकिस्तानी ब्रीड मार्ज वजूद में तो पिछले साल आ गई थी, लेकिन ये टेस्टिंग मरहल में थी। तो इन पाकिस्तानी ब्रीड का आपने बाजियों में कितनी शेयर उसका है भाई, जो टूर्नामेंट आपने विन की है? ब्रीड के 6 कबूतर शामिल थे, 7 के स्क्वाड में 6 पाकिस्तानी थे, 1 जयसूरिया था। यानी ये तो 99% हो गए। हाँ जी, उन्होंने तो डोमिनेट किया जी। देखिए जी, ये कि एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास इस संबंध में कि देखें, आपने कोई एक ब्रांड बनाया अपने नाम का, और जब वो अपने नाम का ब्रांड बनाकर पूरी हुक्मरानी तक पहुंच गए और आपने अरूज पाया, तो इससे बढ़कर शौक यहाँ पर पूरा हो जाता है। मगर जुस्तजू का नाम है, हमारे शौक का नाम है जुस्तजू। तो इन्होंने पाकिस्तानी ब्रीड जो बनाई है, शायद किसी को ये मालूम न हो, मगर इन्होंने दिन रात करके अपना ब्रांड बनाया, जो आजकल चर्चा पूरे लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी ब्रीड का हम आपको शो करवाएंगे इंशाल्लाह अभी। और मैं समझता हूँ कि उस्तादों का काम है ब्रीड बनाना, अनाड़ी नहीं बनाते, और बनाकर उनको दिखाना और स्टेज पे चढ़ना, ये होता है कि हमने ब्रांड बनाया, और भी गर्मी का, जेठ का और लाहौर जैसी गर्मी का, ये इनको क्रेडिट जाता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। अपनी ब्रांड बनाकर, मांगे तांगे कबूतरों का नहीं, अपनी ब्रांड बनाकर इन्होंने कबूतरबाजी की है। बिल्कुल जी उस्ताद जी, ये तो जी मेरे रब का ही करम हो गया है। हाँ जी, वरना तो उम्रें गुजर जाती हैं, ब्रांड नहीं बनते, नहीं बनती, कोई उम्र नहीं गुजर बनती, जाती कोई है नहीं इंसान की, तो वो बन नहीं पाते। तो ये अल्लाह ने करम कर दिया और ये बन गए। देखा, जो चीज खल्क होती है वो मेरे रब के हुक्म से होती है। जी जी, उसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, अल्लाह ही उसमें बरकत डाल देता है, अल्लाह ही उसको बना देता है, और वो बन जाए अगर, तो ये उसका ही करम से होती है। और आप यकीन करें, और बेटा 15 नंबर खाने जो ना वो फड़ के ले आना, आपने कहा पाकिस्तानी का, मैं आपको कराता हूँ शौक। उस्ताद जी बात यही है कि आपका एक टीम वर्क था, जैसे आपने शादाब भाई का जिक्र किया, अपने लड़कों का जिक्र किया, तो क्या आप सिलेक्शन अकेले करते थे या सब? बहुत बड़ा सुकून है सिलेक्शन, या सिलेक्शन किस बुनियाद पे होती है? हाँ वही बात है ना। मैंने तो हमेशा मैं फंसा हूँ, मरा हूँ, जब भी हारा हूँ सिलेक्शन में हारा हूँ। तो ये आप परफेक्ट सिलेक्शन कैसे हुई? वही बात, उससे पहले की बात है, वो परसों जब हम थे वहाँ पे हाँ जलालपुर पटिया, जी जी, जो यानी सारे फरेज जा रहा था, जिसके कबूतर का इंतजार था, तो बैठे तो वो पंजाब चैंपियन बन जाए। तो उससे जब आपने पूछा कि सिलेक्शन, तो क्या जुमले थे उसके? उनके जुमले यही थे कि सैयद नायाब साहब की जो इंटरव्यू से मैंने वो लफ्ज निकाले और उसी हिसाब से मैंने सिलेक्शन की। और आज मैं इंशाल्लाह ताला मेरे कबूतर बैठते हैं तो मैं असू चैंपियन हूँ। ऐसा ही है ना, जेट चैंपियन और असू चैंपियन। और आपके बीच में जो बैठा है, मैं कसम आज घर के उठाता हूँ कि इनके लफ्जों पे मैंने सिलेक्शन की। मैं अब कौन सा कसम उठाऊं, इनके लफ्जों पर मैंने, नायाब साहब के लफ्जों पर मैंने सिलेक्शन की है। मेरे शागिर्द मेरे इस चीज के गवाह है। ये नेट की बात है, ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम, तो हमने उस पर उरूज हासिल किया। मैं सक्कर का चैंपियन भी हूँ, मैं सिंध का चैंपियन भी हूँ। इस टाइम ऐसे नहीं बनते, उस्तादों के लफ्ज ऐसे सुनहरी होते हैं जो पकड़े जाते हैं, और वो उसी के पास में आज बैठा हूँ। ये पाकिस्तानी ब्रीड। ये देखें जी, मैं आपको बताना ये चाह रहा था, जो आपने सिलेक्शन की बात की, जी जी, इस नर की पट्टी, ये जो नर है, ये नर और ये जो इसकी मादा है वो भी दिखाते हैं। ये दोनों बहन भाई हैं, सगे बहन भाई। नर मैंने पहले मंगाया, मादा मैं आपको मंगा के दिखाऊंगा। अब ये पाकिस्तान, आप ये देखें, दिस इज पाकिस्तानी प्योरिटी में। न ये टेढ़ी है न सियालकोटी है, मैं ये क्या है? ये मैं ही आपको यही बताने लगा हूँ ना कि देखें, फी जमाना दौर जो है वो टेडियों का है,
कमगरों का है, जो अक्सरियत में पसंद किए जाते हैं, और आपको बिलखसूस लाहौर और बिलअमूम पूरे पंजाब में ये कबूतर आपको हर घर में मिलेंगे, टैडी और कमगर। इन जब ऐसा अरूज हो और उसमें से उन कबूतरों में आप एक नई ब्रीड को छोड़ें, एक नई ब्रीड इंट्रोड्यूस कराएं पाकिस्तानी, और वो डोमिनेट करके तमाम टैडी और कमगरों को क्लीन स्वीप कर जाए, ऐसे ही तो आप ये देखें, ये अल्लाह की करम है ना। इन कबूतरों ने अपने आप को बताया कि वी आर द बेस्ट। इनके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सही बात है। इनका रिकॉर्ड बताता है, इनकी परफॉर्मेंस ने दुनिया को बताया है कि दे आर द बेस्ट। तो इसके लिए क्या, इसके पीछे मेरी 6-7 साल की मेहनत है, इस ब्रीड के पीछे। देखिए जी, मेहनत से के बगैर कुछ नहीं होता। और ये कबूतर जो आप इसे आपने देखें, मुझे इसका दिखाया, शौक करें आप। ये देखें जी, हमने भी कबूतर रखे जिसामत के हवाले से। बॉडी लैंग्वेज ये कबूतर बता रही है इस टाइम, तो माशाल्लाह इनके मुनफरद कबूतर हैं। और ये बल्कि यूएई, यूके और पाकिस्तान के बाहर के लोगों के लिए एक तोहफा है, शौक के लिए, कि आपने कमंगर देखे, डब वाले देखे, टेडी देखे, गोल्डन देखे, काले मुँहे चूहे, फलाना ढिमकाना, मगर आज हम आपको नई चीज इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, एज पाकिस्तानी ब्रीड। ये आपके सामने है, और इस ब्रांड को जो है किसी और ने नहीं, नायाब हैदर और उसकी पूरी एक टीम है उसके पीछे। और माशाल्लाह आज का नहीं, सालों साल का पाकिस्तान की कबूतर परवरी में जो इस खानदान ने इज्जत दी है कबूतरबाजी को और कबूतर परवरी को, आज हमें फख्र है। उन्होंने एक नई नस्ल भी हमें दी है और हम इनको लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ब्रांड पाकिस्तान की इज्जत कराएंगे, अपने लाहौर की इज्जत कराएंगे। लाहौर एक दिल है, लाहौर एक तख्त है जहाँ पर ये हुक्मरानी कर रहे हैं, तो लाजमी पूरी दुनिया में ये हुक्मरानी करेंगे, एक दिन वही होगा। नायब साहब माशाल्लाह जी, उस्ताद मोहतरम, आपके बेहतरीन कबूतर का शौक करवाया पाकिस्तानियों ये को। देखें जी, आप इसका कुंदा देखें। हाँ जी। आप इसका देखें, कोई शक नहीं। ये कहाँ इसको ले जाएं, आप देखें, पर अपने इसका बगल देखें कहाँ जा रही है। जबरदस्त। आप इसका ये बैलेंस टेल देखें इसकी, ये देखें, ये क्रीज में कबूतर है। सर जी, कबूतर के सारे पॉइंट्स पूरे ये हैं, क्रीज माशाल्लाह। में कबूतर है, और आप इसकी टेल देखें कि हाउ, और ये जो कहते हैं इतने से कबूतर कामयाब है, ये तो अच्छा खासा कबूतर है। हाँ जी, ये कबूतर तो हर तरह के कामयाब है। ब्लड देखिए, असल तो चीज है ब्लड लाइन। ये देखें, इसकी टांगों की बारीकी देखें, कितना बड़ा कबूतर है, टांग कितनी बारीक है, कबूतर कितना बड़ा है कद में। ये लोग जब ये उतरते थे, कुछ तो लोग ये कायम भी होते थे। हाँ जी, इनको अब मैंने एक साहब का वो इंटरव्यू देख लिया, तो कोई साहब फरमा रहे थे कि जी कबूतर जो जेठ में उड़ते हैं उनको आप देखें, उनके नाखून सारे काले होंगे। अब ये देखें, इसकी बेटी, इसका पट्ठा उड़ा है, इसके नाखून सफेद है बीच में, हाँ जी बिल्कुल है, काले भी हैं, सफेद भी हैं। ये माना नहीं रखते। ये मैं बताना लोगों को ये चाहता हूँ कि ये इन चीजों पे वक्त अपना जाया ना करें। कितना हसीन और खूबसूरत ब्रांड बनाया इन्होंने माशाल्लाह। आचा जी, मुबारक हो जी आपको। नहीं, अरे जितना आपने दुनिया घूम रहे हैं, या ये वो लोगों को पता नहीं था, लोगों को नहीं पता था कि ये क्या चीज है। ये वो चीज है जिन्होंने लाहौर पर भाषाई भी की है पूरे पाकिस्तान में, और ऐसे नहीं आज इन्होंने ब्रांड भी बनाया है, अपना ब्रांड मैं बनाया है। एकदम तो ये बताना चाह रहा था कि आप सखर चैंपियन हुए जब टेम्परेचर 48 था। ऐसे ही है, 48, 50। 50। हाँ जी, और एक छत से नहीं हुए, दोनों एक पहले छतों नंबर पे और दूसरी नंबर पे। ऐसे ही है, एक घर वाली, एक एक रीजन वाली, हाँ। ऐसे ही। और उस गर्मी में, अच्छा उस गर्मी की क्या खासियत थी कि पिछले 20 सालों में ऐसा स्पेल आपने देखा कभी नहीं देखा, कि कंटिन्यूअस गर्मी लगातार। और मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा हाँ जी, इतना लंबा स्पेल। असल खासियत तो क्या थी कि गर्मी एक ही रिदम से, एक ही रविश में चली जा रही थी और कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और ये आलम था कि सुबह 9 बजे तक लोगों के 60% कबूतर बैठ जाते ऐसे ही। और 12 बजे तक वो रेशियो 80% को क्रॉस करते हैं। देखिए जी,
शौक में जब मजा आता है, अपनी ब्रीड बनी हुई हो और उसी का जस आता है, बच्चे निकलवा कर हिलाना, हर चीज का फन है। बच्चे निकलवाना फन है यार, बच्चे हिलाना फन है, उनको उड़ाना। और मैं समझा सबसे बड़ी सिलेक्शन है। आज मैं बता दूं, हमारी छतें जो विनर हुई है ना, वो सिलेक्शन की वजह से हुई है। मेहनत हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, परफेक्ट कबूतर डालना और बैठ कर उनको वाच करना, तो ये सबसे बड़ी बात है। हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है। हमारे ये बड़े मैं आपको आज दोबारा आपके सुनने वालों, देखने वालों के लिए बताऊंगा कि जो सिलेक्शन है ना, वो इतना बुनियादी जुज़्व है, इतना बुनियादी जुज़्व है कि आप अपने एक गलत कबूतर को सिलेक्ट करके अपना सारा जो है वहाँ बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब ये सगे बहन भाई जोड़ा लगे हुए, ये बहन भाई है, ये मादा है। आप इसका दिखाएं जी जरा, इसकी आंख का आप दिखाएं जरा, लोगों को शौक कराएं। क्या कमाल है जी, माशाल्लाह, मजा ही आ गया। ये देखें, आपने कराया, अब आप सामने आ जाएं, इसका आप ये दिखाएं। अब आप देखें ना, मादा कद में भी ये भी ठीक मादा है, उसके लेवल की कद में ये जोड़ा लगा हुआ है। आप कितने, आप बड़ी मादा लग रही है ना, आपको बड़े कद की लग रही। आप इसमें देखें, वेट है इसके अंदर, ये देखें उस कबूतर, इसमें कोई वेट है इनके अंदर, कद बड़े हैं लेकिन वेट नहीं है। कल आप क्या बात कर रहे थे सर गुराई के कबूतरों को देख के? सर जी बात यही है, कबूतरबाजी में 100% कबूतर जो होता है ना, वो उसका जो है ना वजूद होता है। मैं समझ लूँ, जब आप कबूतर को पकड़ते हैं ना, आपको पता पड़ जाता है कि मैंने क्या चीज़ पकड़ी है। तो जैसे कबूतर नशा देता है, ऐसे ही है जी शाही। ये कबूतर वैसे जैसे नशा दे रहे हैं कबूतरबाजी में। और इनकी ऐसे ही हमारे उस्ताद तो यही कहते थे बड़े, कि सबसे पहले खूबसूरती हो कबूतर में। खूबसूरत नहीं होगा कौन देखेगा। और ये इनमें खूबसूरती भी है, बेपनाह उड़ान भी है, और वापसी भी है। और वापसी के बाद कायम रहना अगली उड़ान के लिए, ये खून में शामिल होती है बातें, ये ब्लड लाइन में शामिल होती है। कौन सा ब्लड उड़ाऊं, कहते जी कौन सा ब्लड होना चाहिए, कौन सा खून उड़े कबूतर। तो ये ब्लड लाइन जो है ना भाई, यही है कि उड़ने के बाद भी कायम रहे, उड़ने के बाद भी उसका जो है ना बाकी रहे कि हम उड़ा रहे हैं। माशाल्लाह जी, बेहतरीन कबूतर आज हम आपको दिखाए, और ये हमें ही क्रेडिट जाता है। पाकिस्तानी कबूतर हमने शो किए हैं यहाँ से, और आपको शो करवाया है। ये पाकिस्तानी कबूतर लाहौर की तारीखी कबूतर है, और जो हम आपको जिसका ये शो करवा रहे हैं, ये बहन है और ये भाई है। और इनका जो हमारा 14 पिंक पाकिस्तानी उड़ा है, वो इनका पट्ठा है, इनका पट्ठा है, इसी पेयर का पट्ठा है, इसी पेयर का पट्ठा है। लोग कहते हैं जी बहन भाई का जोड़ा नहीं लगाना चाहिए, ये अलग और ये अलग झोल की है। झोल अलग हो, जोड़ा लग सकता है और बच्चे उड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फर्क होना चाहिए जोड़ के अंदर। ये देखिए जी, आपने अब जो सिलेक्शन की बात की थी, मैं उसमें बताता हूँ आपको। सिलेक्शन में ये है कि जो लोगों को, जो मैं चीज़ देखता हूँ, कोई अगर कोई इसके अलावा किसी का कोई और पॉइंट है, वो अपने तरीके से देखता है, तो मुझे उससे इतराज़ नहीं। मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा, वो ये सीखा कि कबूतर जिस वक्त आप सुबह उड़ाएं, तो कबूतर की तवज्जो आसमान की तरफ हो, उसका हर गेड़ा ऊंचाई की तरफ हो, सुभान अल्लाह। नंबर 1। और जब वो बैठे तो तैयार होने में आपका वक्त ज्यादा नहीं, वो आपको जितनी जल्दी रिकवर होगा, उतना ही उसका नेक्स्ट डे रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। दूसरे मानों में ऐसे कबूतर जिनकी कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा है, जिनकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है, स्पेशली अगेंस्ट गर्मी में जिनकी कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा है,
कुव्वत बर्दाश्त किस तरह पता चलेगी आपको कि जब वो बैठेगा तो वो डामाडोल नहीं है, वो थोड़ा सा भी जोर लगाएगा या ज्यादा भी जोर वो अपने लगाएगा, पैरों पे कायम होगा, वो अपने पैरों पे कायम रहेगा। ऐसा ही है। सर जी मसला ये है कि मेरे लिए एक आप मुझे बताएं कि हमने 100 200 जोड़े लगाए रखे हैं, तो ये कम जोड़े कैसे करें? मकसद है कि इससे गुजारा भी नहीं होता। देखें, मैं आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, जोड़े कम किए जा सकते हैं एक हद तक, लेकिन कैसे? जब आपको अपने कबूतरों की कैपेसिटी का पता चल जाए। तो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द कैपेसिटी ऑफ योर पिजन्स, कि आपके कबूतर की किस सलाहियत के, किस बर्दाश्त के, किस खूबियों के मालिक हैं, कितनी उनके अंदर गुंजाइश है। वहाँ भी सिलेक्शन है, वहाँ भी सिलेक्शन है, जोड़ों में भी सिलेक्शन, जोड़ों में भी सिलेक्शन है। अब देखे ना, मैं हर साल, अब इस वक्त जो मैंने जो कॉम्पैक्ट करके ले आया हूँ, पिछले 12 साल से मैं हर साल 60-70 कबूतर जो ब्रीडिंग वाले थे वो मैं इधर उधर दोस्तों को, शागिर्दों को गिफ्ट कर देता था, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि उनको रख के तो उनका रिजल्ट लिया जाए। और जो रिजल्ट वाले थे आते थे वो उनको मैं सामने ले आता था। इस तरह 12-13 साल का ये, वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में छानना मार के, जैसे आप चुनते हैं जो स्पेशल चीजें आई जाती हैं बाहर, और जो आप जिनको अभी टेस्ट नहीं कर पाते या इनको मजीद देखना है, उनको आप साइड पे किया जाए। तो मैं अब, अल्लाह ने मुझे इस स्टेज पे ले आया, परवरदिगार मेरा, कि इस वक्त मेरे जो ब्रीडिंग सेटअप है उसमें कोई एक कबूतर या मादी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं है जिसकी पेडिग्री का मुझे नहीं पता, जिनकी परफॉर्मेंस का मुझे नहीं पता। और मैंने ये तमाम शौकीनों की के लिए, आप चूँकि ये लाइव दिखा रहे हैं, आपके ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी चलना है, तो मैं ये बता रहा हूँ, मैंने इसमें कोई मुबालगा राई के बगैर मैं कभी जोड़ा मादी नर पकड़ के देख के नहीं लगाता। अच्छा, जो मेरे पास कबूतर है, क्योंकि मुझे इनकी पेडिग्री का पता है कि ये क्या है, तो मैं सिर्फ खानदान देख के पेयरिंग करता हूँ। यहाँ बैठा हूँ, बैठ के सोच रहा हूँ, मैं नीचे अपने बेड पे लेटा हूँ, वहाँ लेटा हूँ तो लेट के सोच रहा हूँ कि मैंने पेयर लगाना है, कौन सा लगाया जाए, ये पट्ठा है, इसके साथ पट्टी कौन सी देखनी है, कौन सी। अब उसमें मैं देखता कि वहाँ भी सिलेक्शन है आपके साथ? हाँ जी, वहाँ भी सिलेक्शन है, सोते हुए भी, जागते हुए भी। इसी तरह आपको पता चलता है। और खानवादा सिलेक्ट करना है कि इस खानदान की स्पेशलिटी क्या है, ये घर से भटकते जल्दी नहीं। इस खानदान की स्पेशलिटी क्या है, इनकी परवाज बहुत अच्छी है, ऐसे ही है। इनकी क्या है, इनका रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी है, उनकी रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी है। तो वो चीजें देख के फिर उनको लगाया जाता है। मैंने कभी पकड़ के पॉइंट देख के जोड़ा नहीं लगाया। ये मुझे अगर कोई कहेगा ना, जिस जगह का मुझे नहीं पता, मतलब मुझे गजनफर साहब के कबूतरों का मुझे नहीं पता, अब मैं आपकी तरफ गया हूँ, आप मुझे कहेंगे, वहाँ मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट शॉइंट देख लूँ या कुछ करूँ, लेकिन जिनके हसब नसब का आपको पता होता है, उनके पॉइंट्स नहीं देखे जाते, उनका खून देखा जाता है, वो देख के आप लोग। और आज तक गजनफर साहब, ये बहस मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये बहस मैंने ख़त्म होते नहीं देखी। वो बहस क्या है, पॉइंट बड़े हैं या खून बड़ा है। अब किसी को यही नहीं पता कि व्हाट इज पॉइंट्स और व्हाट इज खून, किसी को यही नहीं पता कि ब्लड लाइन क्या है। मैं बेशक लोगों की, मुझे वो मेरे शागिर्द हैं, वो भेजते रहते हैं, कभी किसी का क्लिप, कभी किसी का क्लिप, कभी मैं आपको फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे किसी का नजर आ जाता है। तो लोगों को ब्लड लाइन का ही बताना नहीं आता कि ब्लड लाइन क्या है। ब्लड लाइन मीन्स परफॉर्मेंस है, असल परफॉर्मेंस, आसमानी हदूद में जो भी परवाज जो है, वो परफॉर्मेंस है उसकी। देखें परफॉर्मेंस क्या, उसकी वजह शोहरत है ना। अगर हम अपने किसी बच्चे या बच्ची की शादी के लिए अगर खानदान का रिश्ता नहीं और बाहर ढूंढ रहे होते हैं तो शोहरत ही चेक कर रहे होते हैं ना।
कि इनकी वजह शोहरत क्या कि ये शरीफ लोग हैं, ऐसे ही क्या ये कारोबारी या पैसे वाले, 4 पैसे इनके पास हैं, कि हमारा बच्चा या बच्ची इनके साथ मिलके, क्या ये खुश इखलाक लोग हैं, ऐसे ऐसे ही क्या ये अकड़ फूं तो नहीं, पॉइंट्स ये देखने क्या चाहिए। कोई ये क्रिमिनल तो नहीं। हाँ। ठीक है, जो अब ब्लड लाइन क्या है कि उनकी वजह शोहरत क्या है, ये कबूतरों की घर आते परफॉर्मेंस हैं। क्या है, इनकी वजह शोहरत क्या क्वालिटीज हैं। अच्छा, फिर जरूरी नहीं कि आप अच्छा ही उड़ाएं, चैंपियन कबूतर आप लगाएंगे तो उसके बच्चे भी आगे से उड़ाएंगे, ये जरूरी नहीं है। अब मैंने एक दिन एक पोस्ट लगी देख रहा था, मैं उस्तादों का नाम मेंशन नहीं करता, वो अक्सर ये मैंने उनके भी देखे तो वो कहते हैं जी वो हमें तो कोई पता नहीं कौन सा है, किसका है, क्या है, हम तो भाई उड़ा हुआ देखते हैं और लगा देते हैं, बस उड़ते ही देखते हैं, परफॉर्मेंस ही सारा कुछ है। तो वो शौक बंदे ना, वो उस्ताद 2-3 ने, तो वो शौक कर रहे थे किसी जगह बैठ के, कबूतरों का वीडियो चल रही थी और वो हड्डी पर आँख ये वो देख रहे थे, तो ऊपर किसी ने कैप्शन लगा दिया कि ये साहिबान तो कहते थे हमें तो कोई नस्ल का खून का कुछ नहीं पता है कि जी क्या है, और हम तो कोई नहीं पॉइंट बॉन्ड देखते कौन से पॉइंट है, हम तो बस जोड़ते हैं उसके जोड़े लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा फिर ये यहाँ क्या देख रहे हैं हाथ में पकड़ के, इनके पास अगर नहीं है तो। पॉइंट्स की अपनी अहमियत है, पॉइंट। अच्छा, ब्लड लाइन मैं उसको कंप्लीट कर दूं, ब्लड लाइन उड़ गया आपका चैंपियन हो गया, ये ब्लड लाइन नहीं है। ब्लड लाइन इज दिस कि एक आपका अच्छा उड़ा, आपने उसका पेयर निकाला, उसका बेटा उड़ा, वो उड़ा, दिस इज कॉल्ड ब्लड लाइन। कि 2 पीढ़ियां उसकी अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, इसका मतलब ये आगे भी काम करेगा। अब आगे आपकी हिकमत है कि उसको तीसरे ऐसे कौन से खानदान में जोड़ते हैं, कौन से दूसरे खानदान में जोड़ते हैं जो उसकी खूबियों को कम ना करे बल्कि उसकी खूबियों को बढ़ा दे। ये है ब्लड लाइन का फायदा। और जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स तो आपने वहां जाके देखने जहां आपको कबूतरों का नहीं पता। आप दुकान से कबूतर लेने चले गए हैं तो आपको उसका हसब नसब का नहीं पता, आप उसके पॉइंट्स चेक करेंगे, ऐसे ही देखेंगे जाके कि भाई हाँ, वो जो दिल को अच्छा लगता है, इसकी हड्डी कैसी है, इसका जोड़ कैसा है, इसका कुंदा कैसा है, बारीक है, मोटा है, इसके पर कैसे हैं, परों की तीलियां कैसी हैं, इसके टेल कैसी है, इसके पाँव कैसे हैं, इसके जिस्म की साख्त कैसी है, क्या ये सिंगल बॉडी कबूतर है, क्या ये डबल बॉडी कबूतर है, व्हाट इज दिस। तो ये वहां है जहां कुछ नहीं पता। और अगर आपको पता है तो आपको कोई, मैं आपको लाइव ये बात बता रहा हूं तमाम शौकीनों के लिए कि जिन लोगों को अपने कबूतरों के हसब नसब का पता है ना, वो आंखें बंद करके सिर्फ सोच के कबूतर लगा सकते। कमाल है। क्योंकि अक्सर लोग देखा गया है कि मांगे तांगे कबूतर लेते और बच्चे बच्चे लेकर अपना शौक पूरा करते हैं। जो लोग ब्रीडिंग पे शौक रखते हैं वो ज़रूर इस बात पर गौर करेंगे जो उस्ताद जी ने बातें बताई हैं। ब्रीडिंग सेटअप वही बना सकते हैं, अच्छे कबूतर जोड़े वही लगा सकते हैं जिनको अच्छे नस्ल का पता हो। तो मैं समझता हूँ कि आज जो उस्ताद की बातें हैं वो आप सबने नोट की होंगी। और मैं इसमें ये जो बात आपको मजीद कहूँ, देखे ना अब टैडी उड़ रहे हैं, मुझे किसी ने, एक साहब मेरे पास आए तो यंग बिल्कुल थे, वो ये जो गुरुद्वारा है ये कौन से, नहीं ये जो नया बना है अपना करतारपुर, हाँ जी करतारपुर, उसके करीब वो रहते हैं नौजवान। तो वो मेरे पास तशरीफ लाए जब ये हम चैंपियन बने, तो उन्होंने कहा जी कि हमने आपके कबूतर देखे हैं कि कमाल उस्ताद जी कबूतर उड़े आपके। तो कबूतर देख के तबीयत खुश हो गई, ऐसा लगता जैसे कबूतर उड़े नहीं। लेकिन हमने देखा कि आपके पास जौंसले कबूतर हैं, टैडी कबूतर तो आपके पास है ही नहीं। और इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पास टैडी कबूतर बहुत कम, 2 पेयर मेरे पास। तो वो अपने साथ आए तो डब्बे में 1 पेयर गिफ्ट ले आए अपनी तरफ से। और उन्होंने कहा उस्ताद जी आपके पास चूंकि हमने देखा टैडी नहीं है, तो ये हम इतने खुश हुए आपकी परफॉर्मेंस से कि हमने ऐसे कबूतर उड़ते देखना तो दूर की बात, सुने भी नहीं कि जिस गर्मी में ये कबूतर उड़े आपके, तो लोगों के
मुकम्मल कबूतर 12-12 एक बजे बैठ जाते थे और आपका पहला कबूतर निकलना शुरू होता था। ऐसे ही तो ये कौन से कबूतर हैं? लेकिन उस्ताद जी ये एक पेयर मैं अपनी खुशी से लेके आया हूँ टेडियों का। अली अहमद साहब वो आप ग्रीन 12 दोनों बच्चे लेके आए हैं, जरा बंदे होंगे वो, ये उनके अच्छा वो मुझे ना गिफ्ट करके गए। मैंने उन्हें कहा यार मुझे, उन्हें कहा नहीं उस्ताद जी ये हमारे बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपके क्योंकि मुकाबलों में हमने देखे नहीं तो आप इनको उड़ा के दे। आप देख के उड़ाएंगे तो आपको मजा आएगा। ये भी मैंने कहा यार मैंने कभी ये नहीं कहा कि टेडी कबूतर बुरे कबूतर हैं, बहुत अच्छे कबूतर हैं जिन्होंने इस वक्त डोमिनेट किया हुआ है, अपनी परफॉर्मेंस से किया हुआ है ना, वो अच्छा उड़ रहे हैं, अच्छे कबूतर हैं, तो वो अपना नाम निकाल रहे हैं मगर अच्छे कबूतर हैं, नो डाउट ये अच्छे कबूतर। लेकिन मेरी जो जुस्तजू थी वो ये थी कि मैं इस चीज से तंग था, ये लोग जो थे ये फलां वाला है, ये फलां वाला है। यार आप लोगों ने अपने घर में 500-500 कबूतर रखा हुआ है यार, व्हाट इज एट योर क्रेडिट, आपके क्रेडिट पे, तो आपके क्रेडिट पे कौन सी चीज है? आपने अपनी काबिज से इस शौक को क्या नई जहत दी है? देखे ना, आप इस चीज के गवाह हैं, हमने इस शौक को 1000 नई जहतें दी हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं। देखे ना, इसमें कंप्यूटराइज्ड सिस्टम टूर्नामेंट्स में हमने किया, ऐसे ही फिर मैसेज सिस्टम हमने मुतारफ हर करवाया, चीज आपने की। ठीक है जी। जिस वक्त कबूतर का मुकाबले का टाइम खत्म हुआ उसी वक्त रिजल्ट बाहर, ऐसे ही। 2-2 3-3 दिन लेट रिजल्ट निकलते थे पहले। पता ही नहीं होता था। उसके बाद तकसीमी इनामात जो थी वो हम 5 स्टार होटल्स और अलहमरा हॉल जैसे हॉल्स में ले गए। उसके बाद फिर हम जो है जो उस्तादी शागिर्दी की रसूमात थी वो रेस्टोरेंट्स में ले गए। बिल्कुल। फिर हमने इस पे बुक लिखी, फिर हमने इस पे मैगजीन निकाला, फिर सोशल मीडिया पे इसको लॉन्च किया। हर काम इस खेल की बेहतरी के लिए किया, इसके कवानीन मुरतब किए, उनको किताबी शक्ल दी इसके कवानीन को। तो मैं चाहा कि इस कबूतरों के शौक में, कबूतरों में भी कोई नई जहत पैदा करें, अपनी कोई ब्रीड आप ऐसी इंट्रोड्यूस कराएं जो आपके क्रेडिट पे हो, जिसको पता चले कि एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई और वो अल्लाह ने ऐसा करम किया मुझ पर कि जिस गर्मी में वो इंट्रोड्यूस हुई और जिस गर्मी ने उसने टेडी कमगरों को डोमिनेट किया, उनको रूल ओवर कर दिया। ऐसे ही। तो वो ऐसी गर्मी थी जो लोग, मैंने अपनी हयात में नहीं देखी इतना लंबा गर्मी का स्पेल। बिल्कुल। तो वो चीज, अब वो जो पेयर दे गए उनके 2 बच्चे निकले हैं पहले, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें ना, मैंने आपको बताया थोड़ा सा ढीले हो गए ये देखें, आपने नोट किया? बिल्कुल सही गल की थी। गोल करके ना, हाँ जी, ये वो है ना जी, ये बेचारे झटका नहीं उठाएंगे। हाँ जी, नहीं नहीं सुना नहीं। ये वो टेडी है जी, वो जो मुझे दे गए। और इस दफा मैं गजनफर साहब फॉर द फर्स्ट टाइम, अब मैंने 2 पेयर पाकिस्तानियों के टेडियों से क्रॉस किए हैं, उनके बच्चे भी छोड़े हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने टेडी क्रॉस किए हैं पाकिस्तानियों में। तो अब मेरी कोशिश ये है कि टेडी भी बढ़ाए जाए। अली अहमद साहब इनको फिर आप कर लीजिएगा पीछे इससे। जी इसमें कोई शक नहीं है कि कबूतर परवरी को उजागर करने में नायाब साहब का जितना हाथ है, रमू से कबूतर परवरी तो आप हैदर साहब का इससे ज्यादा है। मुझे पता है, मैं उसी बात और पे आता हमारी हूं। जो ये शौक है मेरे घर का, उसमें शादाब का बड़ा रोल है। और इस दफा तो जो था, और बल्कि इस दफा जो सिग्निफिकेंस, एक बात मैं भूल ही गया कि इस दफा की कामयाबी का सेहरा जहाँ हैदर अली किया, वहाँ तुराब साहब के भी है। मुकाबले तो तुराब साहब के तय थे, वो इनके नाम से तय हुए थे, उस्ताद तुराब हैदर साहब के। जब तुराब का नाम तो आता है, डोमिनेट तो तुराब ने जब किया। तुराब का नाम आता है तो हमारा दिलो बागो बहार हो जाता है। ये ऑथेंटिक बात है। जाहिर है अपना अपना और अपना, ये कबूतर परवरी को इतना मुकाम देना, बाबा कबूतर परवरी हम इसको खिताब देंगे सैयद नायाब हैदर साहब को, बाबा कबूतर परवरी। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत बड़ा पोस्टर बनाएंगे सिंध में, और जो प्रोग्राम होगा हमारा अभी लेटेस्ट, उसमें सैयद नायाब हैदर साहब को बाबा कबूतर परवरी का एक बहुत बड़ा खिताब देने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला टाइटल हमारा यही होगा और इसी पर हम काम करेंगे। नायाब हैदर साहब और मैं हमेशा इकट्ठे होते हैं,
अल्लाह ताला इन सबको इज़्ज़त दे, इस पूरी फैमिली को इज़्ज़त दे। अल्लाह ताला इनके बदौलत हमें भी इनके साए में जगह दे। अभी अपने भाई से मैं इजाज़त चाहूँगा। बड़ा लंबा प्रोग्राम हो गया, बहुत सारी बातें आपको आज सीखने को मिली होंगी हमारे तवस्सुल से, हमारे प्लेटफार्म से। इंशाअल्लाह ये हमारा प्रोग्राम जारी सारी रहेंगे और ये जुस्तजू भी जारी रहेगी। बड़ी मेहरबानी। कबूतर दिखाएं जी जाके। क्या पोजीशन है? ये भी माशाल्लाह बच्चे छोड़े हुए हैं काफ़ी सारे। उधर भी यही